السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، ہم نے اپنے گزشتہ شو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو کراچی کے بجلی کے صارفین ہیں انہوں نے احتجاج کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ ویسے تو احتجاج کرتے رہتے ہیں، سڑکوں پر احتجاج کیا جائے، دفاتر پر احتجاج کیا جائے، لیکن لگتا یہ کہ کسی کے کان پر جوں نہیں رینگتی، اور سوشل میڈیا کا استعمال جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے تو سب کی امیدیں بھی اس طرف جاری ہیں کہ اس پر جو احتجاج کیا جائے وہ زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو دوبارہ ریکال کرواتے ہیں کہ وہ کیا پلان تھا، صارفین نے کیا سوچا ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد میں جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں تقریباً 2 درجن کے قریب انسانی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب ندیم مرزا صاحب نے، جو کہ سماجی کارکن بھی ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں، چیئرمین ہیں اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن پاکستان کے۔ بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بجلی صارفین نے کیا حل نکالا ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے ایک جیسے اسٹوڈنٹ پیرنٹ فیڈریشن ہے، ہم نے ایک ادارہ بنایا ہے کراچی الیکٹرک کنزیومرز ایسوسیشن کیسا جو ہے وہ اس مسئلے کو دیکھ رہی ہے۔ اس کا جو پہلے مرحلے میں ہم کر رہے ہیں وہ 8 تاریخ کو رات کو 9:30 بجے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دھرنے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر سے باہر بھی اپنی گلی میں اپنے گھر کے ہمیں سستی اور لوڈ شیڈنگ 40 منٹس اور اس کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں۔ اتوار 3 دن جو ہے وہ بیٹھے، میں آپ حیرت کی بات ہے، ابھی ایک پولیٹیکل پارٹی نے نمائش کے اوپر پروگرام کیا، تھوڑے سے لوگ آئے، یعنی آپ اپنے حق کے لیے نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کو نمائش دور پڑ رہا تھا، آپ کو فلاں جگہ دور پڑی تھی، آپ اپنے گھر کے سامنے تو بیٹھ سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری کوشش ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو بجلی کے 11 روپے بڑھنے کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپروول بھی ہو گیا ہے، اور جو کمرشل ریٹ ہے وہ تو مطلب وہ ہو جائے گا کہ الیکٹرک جو ہے وہ گنے کی مشینوں کو، پلا کو، جو فکس کنڈا ہے اس کو تو نہیں روک پا رہی، لیکن جو بل پیمنٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر مصیبت ہے کہ وہ پیسے زیادہ سے زیادہ ان سے پیسے وصول کر لیے جائیں۔ تو 8 تاریخ کو سے 8، 9 اور 10 3 دن تک ہے، اگر ہوا تو ہم اس کو آگے کنٹینیو بھی کریں گے، لیکن روزانہ 9:30 بجے سے لے کے 10 بج کر فی الحال 3 دن کا علامتی اپنے 3 دن کا علامتی ہڑتال ہے۔ اپنے گھروں کے باہر نکلیے بھائی، بیٹھیے، احتجاج ریکارڈ کرائیے، اپنے گھر کے باہر ریکارڈ کریں۔ اگر آپ کو دری بچھا کر بیٹھ سکتے ہیں دری بچھا کر بیٹھیں، نہیں بیٹھ سکتے گھر کے فٹ پاتھ پر باہر بیٹھ سکتے ہیں وہاں بیٹھیں، 2 پوسٹرز بنا لیں، سمپل ہاتھ سے لکھ لیں کہ سستی بجلی دو، لوڈ شیڈنگ ختم کرو۔ رائٹ۔ اور ناظرین، آپ اس میں جو بھی شریک ہو سکتے ہیں دیکھیں، ٹرائی کریں۔ ندیم مرزا صاحب نے تو کال دے دی ہے، اب اس پر عمل کرنا جو ہے وہ شہریوں کا کام۔ جی ٹھیک، میں تو بیٹھوں گا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اس طریقے سے اور جو بھی چاہتا ہے بیٹھنا بیٹھے، ویڈیو بنائے۔ اس سے زیادہ سہولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے تو بہت آسانی کر دی۔ اب تو یہی، اس سے زیادہ تو احتجاج کا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صاحب نے مجھے میسج کیا کہ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر پر بیڈ پر ہی لیٹے لیٹے احتجاج کیجیے اور گھر سے نہیں نکلیے، 3 دن تک گھر سے نہ نکلیں، روڈ سنسان ہو جائیں گے، احتجاج ہو جائے گا۔ تو اب اتنی آسان پسندی دیکھیں کراچی کے ساتھ یہ ایک مسئلہ، اور اسی چیز کا تو ادارے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ مرے ہوئے جان نہیں ہے، ہاں جان نہیں ہے، ان میں کسی میں بھی جان نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ اب روزانہ جو ہے میسیجز آ رہے ہیں، کیسا وہ بچوں کے پریکٹیکل ہو رہے ہیں۔ ایک اسکول کا آیا، کیسا وہ، کیونکہ وہ اسکول کے خلاف ہم کافی احتجاج کر چکے ہیں، تو میں اب دوبارہ اس کا نام، کہ پریکٹیکل شروع ہو رہے ہیں آج سے، اور پریکٹیکل ہی نہیں کرائیں، اور اتنا بڑا اسکول، اور کیا کہہ رہا ہے کہ صاحب ہمارے پاس کیمسٹری کی لیب کا سامان موجود نہیں ہے۔ جب ان کے ایڈمنسٹریٹر صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارے پاس سامان موجود نہیں ہے، لیبارٹری موجود ہے۔ تو یہ رجسٹر کیسے ہو گیا؟
रजिस्टर्ड बहुत बड़ा, चले मैं नाम बताता हूँ, कराची पब्लिक स्कूल गुलशन ब्रांच। रजिस्टर कैसे हो गया फिर जब उनके पास सामान जब नहीं उनके था तो एडमिनिस्ट्रेटर मुस्तफ़ा साहब से बात की तो उन्होंने, पेरेंट्स ने, और पेरेंट भी एक एंकर हैं आपकी तरह, तो उन्होंने बात की तो उसने कहा कि हम करते हैं कुछ, और उसके बाद कोई आज से प्रैक्टिकल शुरू हो गए। तो स्कूलों की कोई चेकिंग नहीं होती रजिस्ट्रेशन से पहले? देखें, जो इदारा बना हुआ है उसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन। इंस्पेक्शन पहले है, तो आपने कभी सुना नहीं होगा कि किसी स्कूल का बाकायदा इंस्पेक्शन हुआ हो, कुछ हुआ हो, कोई इसकी रिपोर्ट आई हो, कोई इंस्पेक्शन में अगर हुआ भी हो तो कोई गलती निकली हो। वो खाना पूरी होती है, जैसे आप जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लेते हैं जाकर, जिसको पता नहीं है लोगों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है क्या, तो इसी तरीके से आप ये एक थर्ड पार्टी वो हो रहा है। सब कुछ हुआ ना, आप देखें 800 रुपये से 1000 रुपये में एक रात पहले आप इंटर बोर्ड का, मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि पोस्ट पेड है इंटरमीडिएट का, मैट्रिक का प्री पेड इस वजह से है कि मैट्रिक में स्कूलों को अपनी साख बचानी है, इस ये पोस्ट पेड है। अब पेपर आउट हो रहा है, और पेपर इतना सस्ती तालीम कर दी हमने कि 800 रुपये से 1000 रुपये में मिल रहा है पेपर एक रात पहले, आप ले लीजिए। और लेकिन सेंटर्स पर मैंने प्रेडिक्शन की थी और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सेंटर्स पर नकल नहीं हो रही है, बहुत सख्ती की जा रही है। सख्ती होगी, पेपर ख़राब होंगे तो कापियाँ रिप्लेसमेंट की बात होगी, कापियाँ रिप्लेसमेंट के पैसे मिलेंगे। असेसमेंट के लिए जो दूसरे जो ज़राए जो चीज़ें हैं पैसे बनाने की, माल बनाने की, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम में नकल का रुझान देखेंगे, कोई रिपोर्ट नहीं आ रही, और बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सख्ती भी हो रही है लोगों के। अच्छा, फिर ये वो शिकायत आम है कि वो नहीं है, अपना पेपर लेट आ रहा है, जल्दी ले रहे हैं। अब जो MCQs का एक शिकायत है कि MCQs का पेपर के साथ नहीं दिया जा रहा, बाद में दिया जा रहा है, 1-1.5 घंटे बाद दिया जा रहा है। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं? जब आप MCQs भी मैनुअल चेक कर रहे हैं तो चेयरमैन बोर्ड साहब आप उसको साथ में क्यों नहीं दे रहे? अब बच्चे की मर्ज़ी है, पहले MCQs करे या वो करे। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है इस वक्त इंटर के। अगले प्रोग्राम में तक जो है आपके इंटर बोर्ड के एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुके होंगे, तो फिर हम इस मसले पे बात कर सकेंगे। राइट। और नाज़रीन, हैदराबाद में जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, सिलेंडर का धमाका जिसमें हुआ और कई कीमती इंसानी जानें जो हैं उसमें ज़ाया हो गई, चली गई। कराची शहर में भी ऐसे कई वाक़यात हुए हैं जिसमें हर बार ऐसे किसी भी वाक़े में खुशकिस्मती से अगर कोई बच जाए तो बड़ी बात है, वरना अदरवाइज़ उसमें कैजुअल्टीज़ ज़रूर होती हैं। ये मामला क्या था, इस हवाले से हमारे हैदराबाद के नुमाइंदे ने एक रिपोर्ट तैयार की है। हम पहले वो रिपोर्ट देखते हैं और फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। चंद रोज कबल हैदराबाद के इलाके फरीदाबाद में पुरस्कार खौफनाक गैस सिलेंडर धमाका। धमाके में झुलसने वाले मुतासिरा एक के बाद एक जख्मों की ताब ना लाते हुए दुनिया से जाने लगे। हैदराबाद गैस सिलेंडर धमाके में झुलसने वाले 23 अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए कराची सिविल के बंद सेंटर पहुंचाया गया था, जिनमें से मजीद 2 जख्मी आज दौरान इलाज दम तोड़ गए हैं। बंद सेंटर में जाबाक होने वालों की मजमूई तादाद अब तक 18 हो गई है। कराची जैसे बड़े शहर में भी हर 2-3 कदम पर बरमला सिलेंडर का कारोबार और इस्तेमाल जारी है, और लोग जो सिलेंडर इस्तेमाल करने पे मजबूर हैं। और ये सिलेंडर एक बम की तरह एक काम कर रहा है, तो किसी भी वक्त भी फट जाता है, जिससे माली और जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ सिलेंडर का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यह है कि ये ख़त्म होने चाहिए सिलेंडर। और ये गैस है ना, जो कराची के अंदर गैस नहीं अपने दे रहे नहीं है। कराची में गवर्नमेंट को चाहिए गैस दे, नाकाबिल इस्तेमाल है। ये मकसद ये है कि टीम बनानी चाहिए इसके लिए। ये कि मेरा ख्याल है सिलेंडर ख़त्म करके गैस की जो है ना सहूलत करनी चाहिए। जो इतना वक्त डाला हुआ है आवाम को, ये कम से कम नहीं करना चाहिए। हुकूमत जो है ना बहुत ही परेशान कर रही है आवाम को। MS सिविल अस्पताल के मुताबिक आतिश ज़दगी से झुलसने वाले 23 में से 5 अफराद अब भी
सिविल बंद सेंटर में जेरे इलाज हैं। जो 23 अफराद अस्पताल लाए गए वो 70 से 100% झुलसे हुए थे, जिनमें अक्सरियत मर्द और बच्चों की थी। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। जी नाज़रीन, आपने अहमर की रिपोर्ट देखी, उसमें उन्होंने पूरी रिपोर्ट में बताया कि किस तरह से वाक़या हुआ, क्या पेश आया। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का वक्त हुआ, यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं और फिर उसके वापस आते हैं और इस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हैदराबाद के हवाले से हम बात करेंगे। हैदराबाद के नुमाइंदे उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जनाब शाहजेब ने। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब। वालेकुम अस्सलाम। शाहजेब, बताइएगा कि ये जो सानिया हुआ इसकी क्या अपडेट है, अब तक की कार्रवाई वहाँ पे क्या हुई है और ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है अब? जी बिल्कुल, सानिया बरेटाबाद को आज पूरा एक हफ्ता गुजर चुका है। इलाका मक्कीनों पर हर दिन कयामत बनकर गुजर रहा है। हादसे में हलाक होने वालों की तादाद 23 हो चुकी है और मुतादिद जख्मी ताल कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। सानिया के बाद से जिला इंतजामिया की जानिब से LPG सिलेंडर्स, फिलिंग स्टेशन और दुकानों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिसमें अब तक 93 दुकानें सील कर दी गई हैं और गुज़िश्ता शब भी खुफिया तरीके से गैस फरोख्त करने और सिलेंडर स्टॉक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शाहजेब, ये बताएं कि इसकी वजह क्या सामने आई? क्या वही सिलेंडर लीकेज का मामला था या कुछ और बात थी? जी बिल्कुल, वजूहात तो यही बताई जा रही हैं कि एक जो चिंची रक्षा होता है उसमें दुकानदार सिलेंडर में गैस भर रहा था, तो जिसके बाद वो गैस लीक हुई। गैस लीक होने के बाद धमाका हुआ, जिसने तमाम दुकानों के सिलेंडर जो है उनको लपेट में ले लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम सिलेंडर्स में धमाका होता रहा और होते होते ये आग इतनी ज्यादा भड़क गई कि उसने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। और हैदराबाद पूरे शहर की और क्या सूरत हाल है ऐसी दुकानों की? जी, सूरत हाल ये है कि अब तक जो है तमाम गैस सिलेंडर्स, फिलिंग जो है स्टेशन बंद करा दिए गए हैं। 93 दुकानें सील कर दी गई हैं। गुज़िश्ता शब भी खुफिया तरीके से गैस फरोख्त करने और सिलेंडर स्टॉक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसमें 100 से ज्यादा सिलेंडर्स अब तक कब्जे में ले लिए गए हैं और अभी भी जो है जिला इंतजामिया की जानिब से तो कार्रवाइयां जारी हैं। अच्छा शाहजेब, ये बताएं कि वहाँ गैस की लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? गैस की लोड शेडिंग तो हैदराबाद में उरूज पर है। कभी दिन में भी गैस चला जाता है और रात में तो गैस गायब ही रहता है, जिसकी वजह से जो है लोग LPG सिलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि गैस जो है LPG सिलेंडर्स तमाम हैदराबाद के इलाकों में इस्तेमाल होते हैं और अब तक जो है गैस सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अभी भी गैस की लोड शेडिंग मुसलसल जारी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। शाहजेब हमारे साथ मौजूद थे हैदराबाद से, मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे। नईमुल्लाह साहब, आपने गुफ्तगू सुनी शाहजेब की, तो ये क्या है, इसका हल क्या है? देखें, हैदराबाद मेरा नेटिव सिटी है, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। हैदराबाद का ये जो परेटाबाद का इलाका है, इसकी डायनामिक्स ये है कि बहुत छोटे छोटे घर बने हुए हैं और वहाँ पर ये जो हुआ है और बच्चे, मदरसे के बच्चे तमाशा देखने के लिए आग का आ गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं। स्टोरीज़ ये भी हैं कि धमाका जो आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, उसने दुकान को लपेट में ले लिया, पहले आग लगी है बाद में सिलेंडर फटा है। इस किस्म की स्टोरीज़ इलाका मकीन बता रहे हैं, वल्लाह अलम बिस्सवाब। लेकिन मुबैना तौर पर ये है कि वो बच्चे सिर्फ आग का तमाशा देखने के लिए, बच्चे और बड़े आए थे और उसमें जो है वो सिलेंडर फटने शुरू हुए और उससे कैजुअल्टीज़ बढ़ गई। एक इत्तला ये भी है कि कैजुअल्टीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं और रोज़ाना 2-2, 3-3 करके डिक्लेयर की जा रही हैं ताकि क्राउड से बचा जा सके। अगर एक साथ 10 या 15 लाशें पहुंच जाएंगी और कैजुअल्टीज़ जो है वो मुबैना तौर पर बताई जा रही हैं कि ये 40 से 50 के करीब हैं और बढ़ भी सकती हैं। दूसरी बात ये कि आप हैदराबाद में नहीं, कराची में जगह जगह जाकर देखें तो दो चीज़ें बहुत आम हैं। एक सिलेंडर भरने के लोगों ने छोटे छोटे रक्शे, सुजुकियाँ ले रखी हैं, वहाँ पर दुकान भी नहीं है, वो भर रहे हैं उसमें से छोटे, उसमें रख के भर रहे हैं। अच्छा, ये जो लोहे का जो सिलेंडर है ये पहले आता था 14 गैज का, 12 गैज का, अब ये आ रहे हैं 18 गैज के, हल्के आ रहे हैं। ये ज़्यादा ख़तरनाक है बमुकाबला फाइबर का जो सिलेंडर है वो जब उसमें आग लगती है तो फटता नहीं है, वो वहीं पर जल कर ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसका जो सिलेंडर है लोहे का, ये धमाके से फटता है, बॉम्ब है एक तरीके से। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो पुराना सिलेंडर हो, नए सिलेंडर के भी अगर वॉल लीक हुआ है
अच्छा, तो वो फट सकता है, वो भी आग पकड़ सकता ज़ाहिर है है। चलाने के दौरान। उसका वो तरीका कार है, बहुत नेट पे चल रहा है कि जैसे ही आग हो तो आप गीला तौलिया करके लपेट दें उसके ऊपर, ये वो। लेकिन नंबर एक है कि सुई गैस, सुई सदरन गैस, ये जो आपने इतने ज़्यादा बड़ी तादाद में सीएनजी रक्शे कर दिए हैं, घरेलू सार्फिन के पास कनेक्शन, उनको गैस क्यों नहीं दे रहे हैं? गैस कहाँ जा रही है? राइट, हम इस पे वापस आते हैं, आपके पास बात करते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मोहतरमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है और एमपीए हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा आगा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। साइमा आगा साहिबा, आप बताइए हैदराबाद की क्या सूरत हाल रही इस धमाके के बाद? आप भी वहाँ हैदराबाद में गई हैं, विजिट भी किया आपने, क्या सूरत हाल देखी आपने? सर मैं वहाँ पर अभी उधर साइट पर ही थी और मैंने वहाँ पर विजिट भी किया, तो मनाजिर ऐसे हैं कि दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं कि ये एक्सप्लोजन जो है गैस का इंतहाई खतरनाक था और तकरीबन 26 कैजुअलिटीज जो हैं वो इस वक्त हो चुकी हैं, जिसमें अच्छा, ज्यादा तादाद 26 जो हो है गई हैं, वो आप बच्चों तस्दीक की करिए है। इस बात की। तो मेरे ख्याल में इस पे थोड़ी सी लेजिस्लेशन की जरूरत है कि जो एलपीजीज के जितने भी जो शॉप्स हैं उनको अगर हम रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया से थोड़ा सा साइड एरिया में ले जाएं तो वो बेहतर रहेगा। और ये इकदामात जो है वो गवर्नमेंट को ही करने हैं और हम करेंगे भी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने अपने लेवल पे भी ये चीज की है और वो दुकानें सील, देखिए सील करना जो शॉप्स है वो मसले का हल नहीं है, क्योंकि लोगों के रोजगार जो है वो जुड़े हुए हैं। हमने देखना है कि हमने सेफ्टी के लिए क्या करना है कि दोबारा इस तरीके के जो सानेहात हैं वो ना हो। उस तरीकों को देखते हुए जब मैं वहाँ लोगों से मिली हूँ तो आप यकीन करें कि दिल खून के आंसू रो रहा था। मैंने कराची भी विजिट किया, बर्न वार्ड का, मैंने हैदराबाद में भी विजिट किया और अभी मैं उनके घरों को विजिट करके आ रही हूँ। तो वहाँ पर एक एक घर में 4-4, 5-5 लोगों की जो है वो कैजुअलिटीज हुई हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं। तो उनका जो गुस्सा है तो वो भी जो है वो देखने के उसमें है कि जरूरी नहीं है कि अगर वो गुस्सा कर रहे हैं, गुस्से में कुछ कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड नहीं है। जब इंसान मुश्किल और परेशानी में और दुख में होता है तो उसे ये सारी चीजें याद आती हैं कि हमारे पास अगर कोई उनके लिए दुआ भी कर रहा होगा, कोशिशें भी कर रहा होगा, तो उन्हें यही लग रहा होगा कि हमारे प्यारों के लिए शायद कोशिशें नहीं हो रही या उनके लिए कोई कुछ कर नहीं रहा। जबकि सिंध गवर्नमेंट जो है, सीएम साहब वहां पर पहुंचे हैं, मेयर साहब वहां पर पहुंचे हैं और वजीर वहां पर पहुंचे हैं, मैं खुद वहां पर पहुंची हूँ, जितने लोग वहां से कंसल्ट हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और उनकी दादरसी कर सकते हैं हम लोग। देखें, एक चीज हो गई, अब दोबारा ना हो उसके मय्यस लेने पड़ेंगे। उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े जो गैस के सिलेंडर हैं, पहले ये छोटे आते थे, अब ये इतने बड़े बड़े आ गए हैं। और वहां पर जो मैंने शॉप विजिट की है वहां पर वो रात को ही एक खेप उतरी थी सिलेंडर्स की ना, वो सब भरे हुए थे और ये केमिकल था। केमिकल जब नीचे से जब जा रहा था तो उसने वो पूरी की पूरी जो स्ट्रीट है उसको अपनी लपेट में लिया हुआ था कि बच्चे और औरतें अगर दरवाजों से देख भी रही थी कि क्या हुआ है तो वो भी झुलस गए। तो कितना खतरनाक है ये रेजिडेंशियल एरियाज में। मैं कहती हूँ कि ये तो चलते फिरते बम की जो है ना हमने शॉप्स अपने रेजिडेंशियल एरियाज में रखी हुई है। इससे जो है वो साइड एरिया में होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात हमारे हैं, पूरे पाकिस्तान में गैस का मसला है। देखें, गैस नहीं है, मेरे घर में भी नहीं है, मैं भी सिलेंडर यूज करती हूँ, कल को मेरे घर में भी हादसा हो सकता है। तो मैं उनके दुख को अच्छी तरह समझ रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि हम सेफ्टी किस तरीके से कर सकते हैं, उस पे हम सबको मिलके जो है सब जमातों को मिलके बैठना चाहिए। और सारे हैदराबाद में, कराची में आपको पता है आयशा मंजिल पे भी ये एक्सप्लोजन हो चुका है, कितनी कैजुअलिटीज वहां पर हुई थी। ये अब दूसरी हुआ है हैदराबाद में और आगे कब होगा ये आपको पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। लेकिन अगर हमने सेफ्टी मेजर्स लिए और इस पे कानून साजी की और इनको हम शहर से बाहर ले गए तो शायद हम कुछ कर सकेंगे इनको रोकने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा साइमा आगा साहिबा, गुफ्तगू करी थी एमपीए पीपल्स पार्टी से। और नाज़रीन, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। हैदराबाद के अफसोसनाक साने के हवाले से हमने गुफ्तगू की। जनाब नदीम मिर्ज़ा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, मोहतरमा साइमा देखें, कह रही हैं कि वो साइमा साहबा कह रही हैं कि साइट ले जाइए। मुझे एक बात बताइए कि आप कैसे फुल प्रूफ करेंगे? आप सारे सीएनजी एलएनजी स्टेशन जो हैं आपके पास, आपने अल्टरनेट आपने बंद तो कर दिए, 100 सिलेंडर जब्त कर लिए, 93 दुकानें बंद कर दी, ये कर दिया। अब जो गरीब आदमी है उसका रोज़गार है रक्षे का, फिर जो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? तंदूर वाले हैं, होटल वाले हैं, उनके पास तो गैस कनेक्शन नहीं है। तो या तो हुकूमत गैस दे ना सबको, या गैस दे, या कोई स्टेशन हो जहाँ पे जाकर सिक्योरिटी मेजर्स के साथ गैस भरी जा सके। गैस तो चाहिए ना लोगों को। क्या लकड़ियों पर चूल्हे बनाए, क्या करें? लेकिन लकड़ियों के चूल्हे पर खाना तो पक सकता है, रक्षा तो नहीं चल सकता। तो ये कोई हल नहीं। क्या आप गरीब आदमी को बेरोज़गार कर दें, और दूसरी बात है कि घरेलू सार्फिन को आप गैस दीजिए, आप उनको लोड शेडिंग ना करें, आपकी मेहरबानी, ताकि लोग, अब यहाँ कराची में, ये तो एक बहुत कंजस्टेड और बहुत पसमानदा इलाका परेटाबाद का, कराची डिफेंस में 2 साल से गैस नहीं है। आप बताइए कैसे होगा ये हादसा? अब दूसरा एक और है, उसी इलाके में जो हमारी टीम ने सर्वे किया, वहाँ पर 19 लीटर की पेट्रोल में की बोतल में, पानी की बोतल में पेट्रोल बेचा जा रहा है खुला। अच्छा, हम किसी और हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं। पेट्रोल खुलेआम बेचा जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आग पकड़ने वाली चीज़ है। इस तरीके से कराची में आप जो है वो 3,000 रुपये हफ्ता दीजिए, ड्रम रख कर पेट्रोल बेच लीजिए कहीं भी। इलीगल पेट्रोल पंप्स चल रहे हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब अजहर शेख साहब ने, यूसी चेयरमैन है हैदराबाद से। नदीम साहब, उनसे बात कर रहे हैं, फिर आपकी तरफ वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। अजहर शेख साहब, बताइए वहाँ क्या सूरत हाल है हैदराबाद में, परीटाबाद में जहाँ धमाका हुआ, और वहाँ की ओवरऑल भी शहर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? भाई सूरत हाल तो वहाँ पर बहुत ज्यादा खराब है। कल हम वहाँ पर जो है गए थे ताज़िम इयादत के लिए, वहाँ पर फाता खानी के लिए हम वहाँ पर गए। तो जब आप यकीन मानेंगे, जब हम फाता खानी कर रहे थे तो वहाँ पर मस्जिद से फिर एक और ऐलान शुरू हो गया कि यहाँ पर एक बच्चा और जो है मकसद की शहादत पा गया। तो हर थोड़ी देर के बाद जो है कोई ना कोई जो है ना मरने की खबर आ रही है वहाँ से। अफसोसनाक सूरत हाल है बड़ी। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? ये जो वहाँ पर था, एक मोहम्मद अकरम नाम साहब की यहाँ पर दुकानदार हैं, उनकी यहाँ पर शॉप थी। वहाँ पर गैस जो थी ना वो हो रही थी, लीकेज हो रही थी वहां से। तो एक गाड़ी पे एक बागड़ी जो है ना फ्रूट जो बेचते हैं वो वहां पर आया है। शायद उसकी हाथ में कोई सिगरेट थी या उसकी गाड़ी बंद हो गई थी। जब उसने जो है किक मारी तो एकदम जो ना प्लग में इशार निकला, या सिगरेट की वजह से जो है ना क्या एकदम जो है दुकान में आग लग गई। दुकान में आग लगी। जो मोहम्मद अकरम नामी शख्स था, उसकी पूरी शलवार जल चुकी थी। वो नाले के अंदर जाके बैठ गया। जब वो नाले के अंदर जाके बैठा तो जो ना इतनी देर में जो बच्चे जो थे ना वो खेल रहे थे वहां पर। वो बच्चे जो खेल रहे थे वहां पर आके उन्होंने देखा कि ये हो क्या रहा है, ये आग कैसे लग रही है। जब बच्चे जैसे ही करीब आए तो उसके अंदर मजीद जो तो वहां पर सिलेंडर रखे हुए थे, तकरीबन 7 से 8 के करीब सिलेंडर थे जो नाकारा थे। उनमें एकदम धमाके के साथ जो आग लगी है ना, उस आग की लपेट के अंदर सारे ये बच्चे उसके अंदर आ गए। तो अब आप क्या समझते हैं सूरत हाल में बेहतरी कैसे लाई जाए? जी, अब सूरत हाल में बेहतरी कैसे लाई जाए, आप क्या समझते हैं, कोई अपील करना चाहेंगे? भाई बहुत ज्यादा वहां पर जो है कशीदा सूरत हाल है। लोग बेचारे बहुत ज्यादा परेशान है। वो गरीब आबादियों की आबादी है, गरीब लोग वहां पर ज्यादा रहते हैं। लेकिन सूरत हाल ये कि समझ में नहीं आ रहा है, वहां पर अजीब सी सिचुएशन हो रही है। कोई ऐसा ना हो कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि क्या से बच्चों की वजह से जो ना कोई इंकलाब ना आ जाए वहां पर। क्योंकि ये पूरा हैदराबाद के अंदर वहां पर एक चीज ये पहचानी जाती है कि जो हैदराबाद के अंदर ये जी वार्ड का जो एरिया ना, ये बहुत बड़ी आबादी का एरिया है। अब वहां पर लोग इतने परेशान हो रहे हैं, हो क्या रहा है। अब सबसे बड़ा मसला तो वहां पर ये हो गया है कि वहां पर जो गरीब रक्षा चलाने वाले, तंदूर का काम करने वाले, अब गैस का वहां पर जो प्रॉब्लम हो गई है, गैस की टंकियों की प्रॉब्लम हो गई है, सारी दुकानों को सील कर दिया गया है। ये एक हादसा तो हो गया, ये भी बहुत गलत हुआ। और इससे ज्यादा गलत ये हुआ है कि यहाँ की दुकानों को जो है इन्होंने दूर दराज के इलाकों में शिफ्ट कर दिया।
چلے یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جب ایسے کام کر رہا ہے تو وہاں پر جو گیس کی فراہمی کی جائے، وہ گیس کی فراہمی کیوں نہیں کرتے وہاں پر لوگوں کے چولہے نہیں چل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر یہاں پر گیس ہی نہیں ہے، یہاں پر لوگوں کے لیے گیس جلانے کے لیے گیس نہیں ہے، روٹی پکانے کے لیے گیس نہیں ہے. بہت زیادہ وہاں پر اشتعال پایا جاتا ہے. میری نظر کے اندر یہ حکومت پاکستان کا ایک وقت ہے، وہاں پر وقت بنا کے ان کی داد رسائی کی جائے. وہاں پر لوگوں کے ساتھ جو ان کے جو بیچارے کے جو مقدم مرے ہیں، جو زخمی ہیں، ان کی جو ہے نا کہ نا اس پر دلی ہمدردی کی جائے تاکہ ان کے زخموں کو مرہم رکھا جائے. بہت شکریہ آپ نہ کا. کہ اظہر جو ہے شیخ نا- صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود تھے. UC چیئرمین UC 32 گفتگو کر رہے تھے. جناب مرزا صاحب، دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ جو لوگ متاثرین ہیں ان کو پیسے دیے جائیں. ابھی تک کوئی کسی نے پیسے نہیں دیے. اعلانات مجھے نہیں پتا کہ ہوئے کہ نہیں ہوئے، لیکن پیسے نہیں دیے. وہ بہت ہی غریب لوگ ہیں. مطلب ایک عورت سے بات ہوئی کہ جس کا شوہر بھی مر گیا اور جس کا بیٹا بھی مر گیا، اور اب وہاں پر فاقو. دوسری بات، سوئی گیس کیا کر رہی ہے؟ سوئی سدرن گیس کمپنی کیا کر رہی ہے؟ ویسے اس سارے حادثے کی ذمہ داری یہ کمپنیوں میں نہیں ذمہ داری عائد کرنی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی ان کے اوپر ہے. آپ وہ کہ اگر وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ اچھا نہیں چلیں، ہوتی، کچھ گیس نہیں کر فراہم سکتے کرتے، مستقل طور پر، لیکن ابھی فی الحال تو جب آپ یہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں گیس سلنڈرز کے خلاف، اور یہ کیونکہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے. ابھی UC چیئرمین صاحب نے بھی کہا، خاتون نے بھی کہا جو MP ہیں، آپ فوری طور پر گیس تو کھولیں حیدرآباد میں. لوگ گھروں میں چولہا تو جلا سکیں. جب آپ کو گیس نہیں مل رہی ہے، آپ مجھے بتائیے کہ پریٹا آباد سے لوگ سائٹ ایریا میں صرف گیس کا سلنڈر بھرنے کے لیے جائیں گے، بھرانے کے لیے واپس آئیں گے، کتنا کرایہ خرچ ہوگا، کتنا پیٹرول خرچ ہوگا؟ کافی دور ہے وہ. اب آپ دور دراز کے شہر کے علاقے جنگلوں میں جا کر گیس بھر، آپ گیس تو کھولیں. گیس کھولنی چاہیے نا آپ کو. آپ CNG اسٹیشنز کھولیں تاکہ لوگ، آپ جہاں رکشے والا 200 روپے کرایہ لے رہا تھا وہاں 500 روپے، 600 روپے، 800 روپے مانگ رہا ہے. پوری جو معیشت ہے حیدرآباد کی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، ذہنی طور پر بھی وہ ہو گئے ہیں، اور بہت بری صورتحال ہے. وہاں کی جو رپورٹ آ رہی ہے، جو اظہر شیخ صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ ایریا جو ہے وہ ایریا نہیں، پورا حیدرآباد بہت کنجسٹڈ آبادی کے اوپر ہے. حیدرآباد سٹی جو ہے، لطیف آباد کی بات نہیں میں کر رہا ہوں. تو آپ وہاں پر کوئی کیا میجرز کیے ہیں؟ وزیر اعلیٰ صاحب گئے، کابرن ٹیسوری صاحب گئے، گورنر صاحب گئے، اور لوگ گئے، متحدہ کا وفد گیا، جماعت اسلامی والے گئے. کیا ان کو ریسکیو کیا؟ وہ یہ صحیح بتا رہے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ایک میت کی اطلاع آتی ہے. ظہر پہ بھی جنازہ، عصر پہ بھی جنازہ، عشاء میں بھی جنازہ. کیا کریں؟ تو اس ایسی صورتحال میں، اور کوئی نہ پرائم منسٹر کا سلسلے میں کوئی وفد آیا جیسے بتا رہے ہیں، تو فوری طور پر پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ سوئی گیس کو، سوئی سدرن گیس کو، پیٹرولیم منسٹری ہدایت کرے کہ حیدرآباد شہر کے لیے جب تک یہ سسٹم آلٹرنیٹ، اور جب تک آلٹرنیٹ سسٹم نہیں جاتا، آپ کے پاس گیس ہے، آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، آپ لوڈ شیڈنگ بند کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. نذیر مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رین کو آج کے شو سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.